उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਹ ਆਰੰਭਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਹੋਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ। शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 नमो। ਸ਼ਿਵ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਵਸੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਫੈਲੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हम अपनी जो हमारी उत्तम भावनाएं हैं उनका विकास करते हैं। हम अपने चित्त का नैर्मल्य स्थापित करते हैं और सब में समभाव की कल्पना करते हैं, क्योंकि उस समय हमें ये अनुभूत होता है कि जो शिव तत्व मुझ में है वही शिव तत्व सब में है। और अगर हम इस भाव का अनुभव कर करके चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है और हमारा जीवन उत्तम बन सकता है। ਇਹ ज्योतिर्लिंग ਹਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਗਰ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਕਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਥਿਤ ਵੈਦਿਆਨਾਥ ਧਾਮ, ਪੂਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੀਮਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ,
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਨੇੜੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं धुष्मेशं च शिवालये। प्रायः प्राकृतिक स्थानों पर नदियों के, जैसे सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में तो समुद्र के तट है, समुद्र के तट पर है। आंध्र प्रदेश में है तो वो कृष्णा के तट पर है। नर्मदेश्वर हैं तो नर्मदा के तट पर हैं। केदारेश्वर हैं, केदार मतलब हिमालय श्रृंखला और जो मंदाकिनी है उसके तट पर हैं। ਇਹਨਾਂ 12 ज्योतिर्लिंगां ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ज्योतिर्लिंगां ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 12 ज्योतिर्लिंगां ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ज्योतिर्लिंगां ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਰਾਵਲ ਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਸਮਾਗਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ज्योतिर्लिंगां ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 12 ज्योतिर्लिंगों का सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, क्योंकि वह संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਸੋਮਨਾਥ ज्योतिर्लिंग ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਜੀਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ज्योतिर्लिंग ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ज्योतिर्लिंग ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਏ। सोमनाथ मंदिर
जिसको बड़े संघर्षों से हम बचा पाए हैं और कई बार उस पर आक्रमण भी हुए। उसकी समृद्धि को देख करके उसमें जो स्वर्ण थे या जो भी समृद्धि थी उसको लूटने के चक्कर में 17 बार आक्रमण हुए और उसके बाद भी वो सुरक्षित रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी मरम्मत भी कराई और उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। ਇਹ ਸਾਰੇ 12 ਤੀਰਥ ਦਿਵਯਤਾ, ਸਾਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। काशी का सर्वोत्तम महत्व है कि काशी विश्वनाथ की नगरी है, त्रिशूल में उसको धारण करते हैं। प्रलय के समय में भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता, वो नगरी सुरक्षित रहती है। इस रूप में भगवान शिव की उपासना की गई है। तो काशी विश्वनाथ का भी अपना एक बड़ा महत्व है जो मध्य स्थान है भारतवर्ष का। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੈਨ ਅਤੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਸਥਿਤ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲਮ ਸਥਿਤ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। शिव और शक्ति का पार्थक्य कहीं नहीं है। शिव शक्ति के बिना नहीं है, न शिव शक्ति रहितोस्ति। शक्ति के बिना शिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ। जहाँ से सृष्टि का आविर्भाव है और जिसमें उस पूरी सृष्टि का विलय है, इस रूप में जो अपने स्वरूप का प्रथन करता है, उस परम शिव तत्व से हमारा तादात्म्य हो जाए, यह विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भारत की आत्म तत्व की जो खोज है, यह विश्व के विज्ञान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस रूप में हम इस भगवान शिव की उपासना को देख सकते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦਾ। ਸਿਰਫ 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੈਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। उनके नाम से एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वह है पंच देवतोपासना की स्थापना। सामान्य रूप से उस समय भारत में शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, शौर्य इत्यादि परस्पर वैमनस्य की दृष्टि से एक दूसरे को देखते थे। लेकिन आचार्य शंकर ने उन सबको यह बताने में सफल रहे कि यद्यपि अपनी भावना की दृष्टि से वह किसी भी देवता की उपासना करें, लेकिन तात्विक दृष्टि से सभी में एक ही तत्व विद्यमान है और इसमें वो सफल हुए। लोग अपनी श्रद्धा से उपासना करते हुए दूसरे देवता या दूसरे देवता के अनुयायी से स्नेहपूर्वक व्यवहार करने लगे। यह भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज भी उस परंपरा का पालन हम कर रहे हैं। और भारत में जो सौमनस्य की भावना है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। कुंभ को उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया और वह व्यवस्था आज तक हमारे देश में बनी हुई है कि करोड़ों लोग अपनी आस्था, अपनी संस्कृति उसको ध्यान में रखते हुए 4 जगहों पे एकत्रित होते हैं और वहाँ फिर पहले जो संकल्पना थी उसको कितना कार्यान्वित किया गया उसके बारे में विमर्श करते हैं। भावी जो योजना है उसके बारे में विमर्श करते हैं। और भारत में जितने संप्रदाय के ज्ञानी,
जो संत महात्मा वो आपस में विमर्श करते हुए देश की जितनी समस्याएं हैं या देश का कैसे विकास हो इसके बारे में विमर्श करते हैं। उसको बनाने वाले, उसको व्यवस्थित करने वाले आदि शंकराचार्य हैं, जो भारत की इस सांस्कृतिक एकता और इस सांस्कृतिक महत्व को उन्होंने स्थापित किया, जो आज तक अबाध रूप से हमारे देश में चला आ रहा है। ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ। जो बाल वृंद हैं, जो हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक आदर्श है कि कैसे 8 वर्ष का बच्चा देश को देख रहा है। वह देख रहा है कि देश की अखंडता कैसे रहे, कैसे यहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता आए। जो युवा वृंद है उसके लिए एक मापदंड के रूप में है कि किस प्रकार एक युवा वर्ग को संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। कोई यदि वैराग्य वृत्ति का व्यक्ति है तो उसके लिए एक वह उदाहरण है कि वो किस प्रकार वैराग्य की दृष्टि से रहते हुए भी लोक कल्याण मात्र को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, इस तरह से देश के लिए कैसे काम किया जाए, इसके लिए वह प्रेरणा स्रोत हैं। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। यात्रा के क्रम में वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो गए ही, लेकिन इसके साथ नेपाल में पशुपतिनाथ, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ सिंधु प्रदेश, बलूचिस्तान, पेशावर, तक्षशिला और फिर अफ़गानिस्तान की ओर से जाते हुए उन्होंने सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में शास्त्रार्थ किया था। और फिर संपूर्ण भूभाग को उस समय एकीकृत मानते हुए उन्होंने सांस्कृतिक एकता स्थापित की। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਵੈਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਰਿਕਾਸ਼ਰਮ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਪੁਰੀ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਗੇਰੀ। आचार्य शंकर का जो एक विशेष योगदान है वह है 4 मठों की स्थापना। और 4 मठों की स्थापना के द्वारा उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज को एकीकृत किया है। उन 4 मठों के नाम इस प्रकार हैं कि सर्वप्रथम जो उड़ीसा में पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो एक धाम भी है, वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की। गोवर्धन मठ ऋग्वेद के लिए जाना जाता है और उनके प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य उसके प्रथम शंकराचार्य नियुक्त हुए। वहाँ का जो वेद वाक्य है वह प्रज्ञानम ब्रह्म है। दूसरा जो उनका प्रमुख मठ है वह श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में स्थित है और वह यजुर्वेद का मठ माना जाता है। यजुर्वेद का जो मुख्य वाक्य है वह अहम ब्रह्मास्मि है। और वहाँ के जो प्रथम आचार्य हुए वो सुरेश्वराचार्य हुए। इसके बाद जो तीसरा मठ है वो गुजरात में है, जो द्वारका पीठ या शारदा मठ के रूप में जाना जाता है। वह सामवेद का मठ है और वहाँ का जो प्रमुख वाक्य है वह तत्त्वमसि है। तो वहाँ के प्रथम आचार्य जो थे वो हस्तामलक थे। और जो चौथा मठ है वो ज्योतिष पीठ है, वह बद्रीनाथ के पास है उत्तराखंड में, और वह अथर्ववेद का मठ माना जाता है। वहाँ के जो प्रथम आचार्य थे वह तोटकाचार्य थे और वहाँ का जो वाक्य है वह अयम आत्मा ब्रह्म है। तो 4 वेदों के द्वारा, 4 प्रकार के वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा उन्होंने ये बताया कि जीव ही ब्रह्म है और जीव में, प्रत्येक जीव में जो आत्मा है वह एक ही है और आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी एक हैं। ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 32 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ
महासमाधि प्राप्त की थी। तो ये 4 धाम, 4 क्षेत्र और 4 मठ और 4 वेद, और चारों वेद का एक अर्थ कि हम सब में आत्मा एक तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। इस दृष्टि से हम यदि सबको देखते हैं तो हमारे सब द्वेष राग समाप्त हो जाते हैं। ਇਹ ਸੁਖਮਈ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। उस जगह पे जो उनका जो समाधि स्थल था वह किसी कारणवश जो विपदा आई थी उसमें समाप्त हो गया, तो उसको जिस प्रकार से आज स्थापित किया जा रहा है और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार उसको एक विशेष रूप में अपने अंदर रखते हुए उसको आगे बढ़ाया है, यह बहुत प्रशंसा के योग्य है। आचार्य शंकर हमेशा कहा करते थे कि जो राजा सुधनवा जैसा चाहिए, जो नियम के आधार पर अच्छी तरह से प्रशासन चलाते हुए, धर्म को समाज से जोड़ते हुए, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एकता स्थापित करते हुए आगे बढ़ते थे। यदि इस तरह का प्रशासक हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु रहेगा, भारत धन धान्य से संपन्न रहेगा और भारत जिसके लिए परंपरा से जाना जाता है वही रूप हमारे समक्ष एक बार फिर से उपस्थित होगा। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੈਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਸੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मरान्द सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे